वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल पढ़ने से पहले मैं मौसम को बोलूंगी कि प्लीज मयंक माथुर जिन्होंने हमें ये वीडियो सजेस्ट की है उनकी जो ईमेल है उसका टाइटल हमें पढ़ के सुनाए। टाइटल है Hooray! I am your new subscriber. Love to see your reaction on world's best hotel in India. Well, अभी हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड्स बेस्ट होटल इन इंडिया, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बड़ा मजा आया था ये टाइटल पढ़ने का। ओके, अब वीडियो का टाइटल बताते हैं। टाइटल है द बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड, उम्मेद भवन प्रेसिडेंशियल स्वीट्स, रिव्यू विद लीजा। और अभी हम देख लेते हैं होटल जो कि हमें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हमें पता है इंडिया में बहुत खूबसूरत होटल हैं, बट अभी हम देखने जा रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले कभी कोई वीडियो नहीं देखी है ना। मैं नहीं ख्याल हमने कोई होटल देखा है। बिल्कुल, हम होटल जो है फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं। हम अभी फर्स्ट टाइम, लेकिन हम लोगों को पता है कि अच्छे होटल्स हैं, बट एनीवे अभी देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें लीजा मंगलदास के चैनल को। उसके अलावा मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं होटल। Once exclusively the domain of monarchs and heads of state, presidential suites have come to be the playgrounds of movie stars, sports heroes, and business tycoons. Hello and welcome to Luxury Time. My name is Lisa Mangaldas, and on the show today, we take you through some of India's most lavish presidential suites. And the pampering begins as soon as you arrive. Wow. ये तो बिल्कुल लग रहा है जैसे हम लोग उस टाइम में चले गए हैं। रानी कोई रानी महारानी। Voted the best hotel in the world by TripAdvisor, the Umaid Bhawan Palace engulfs you in regal splendor the moment you arrive. An important emblem of Rajasthan's heritage, the architecture is overwhelming in its beauty. Perched on the highest point in Jodhpur, it inspires with glorious views of the historical Blue City, vast sand dunes and the majestic Mehrangarh Fort. Set amidst 26 acres of lush gardens with a subterranean zodiac pool, it is the last of the great palaces of India. I think first of all it's the grandeur of the building. My grandfather commissioned something very special. Great detail has gone into building it. All the stonework and the local artisans put in. That's the first step. Secondly, it's still a living palace. The family lives here. We have our old staff and we have the modern trained professionals from Taj. And the combination of that gives this kind of old world charm plus the professionalism. And it looks a huge place, but there are only 65 rooms, so people get a sense of living discreetly. But it's not all luxury. It's taken time to get this palace looking like it is. There was a time when it was all industry. When I came back from England in 1971, with just my mother and myself, then we decided to turn it into a hotel. And gradually, it grew from a small family-run place into a professionally run hotel. Living life king size is a philosophy familiar to those that choose presidential suites. But at the Taj Umaid Bhawan Palace in Jodhpur, this philosophy operates at a whole other level. Here there are not one but two presidential suites. The Maharaja Umaid Singh Suite and the Maharani Badan Kanwar Suite. And as you'll soon see, each takes on the persona of its eponymous ruler. As you can probably tell, pink was Maharani Badan Kanwar's favorite color. So from the Art Deco sofas upholstered in rich shades of old rose
to the bathtub carved out of a single block of pink marble, the suite is a celebration of femininity. I thought it only fitting that my afternoon agenda include high tea. And what's more, it's served by the most obliging retinue of royal butlers, always eager to please. Thank you. From smoked salmon and caviar to the most delicate mithai, the vast array of sweet and savory treats I was presented with left me with a very difficult task, choosing what to taste. It was all divine. The private balcony of the Maharani suite with its lovely swing has an uninterrupted view of the palace gardens, and the beautiful bougainvillea seems to borrow their hue from the pink of the interiors. The Maharaja suite spells masculinity. The living room is in deep shades of crimson and mahogany, and the art depicts scenes of valor, such as hunting and equestrian adventure. These rooms, these Noblen suites, the Art Deco. In fact, I've lived here as a child in this room itself, so they bring back a lot of happy memories. The striking murals in both suites are by famed Polish artist Stefan Norblin. And the decor includes historic photographs and objects from the royal family's personal collection. The work of the palace got stalled because of the war, and you must have heard that the ship with the furniture was sunk. So my father employed a Polish artist and designer who had an exhibition in Bombay, Stefan Norblin, and he designed these suites, and a lot of the furniture and everything was made locally. This very bed once belonged to Maharaja Umaid Singh. Notice the eagle gleaming against the footboard. It was a favorite motif of the royal family. Big bed over there was like a trampoline for me. I used to enjoy jumping up and down. The mattress, of course, has been changed. With me now is Brijesh Sharma, Director of Sales and Marketing at Taj Umaid Bhawan Palace. Brijesh, presidential suites are associated with the heights of luxury. Can you take me through the facilities and amenities available at the presidential suites here? Sure, the services what you get in presidential suite, you are given the best of best butler who are throughout with you, which make you feel the royal services at all time, the grandeur of the presidential suite, the art deco, the bathrooms, the jacuzzi in the room, the private spa, which is outstanding. Who are some of the most distinguished guests that have stayed at the presidential suites here? We have our living legend, Mr. Amitabh Bachchan, who has stayed with us. We have Mr. Amir Khan, who has stayed with us. Mr. Shah Rukh Khan, who stayed with us. Internationally, if we talk about, we have President of Gabon, who stayed with us. Royal family of Qatar, who has stayed with us. So the presidential suite is the preferred choice, and it's the preferred choice of Mr. Ambani and family. In addition to all of that, there's also something intangible. There's magic in the air here. It's a real palace. There are peacocks in the garden, the moon rising behind us. That's what makes this experience truly unforgettable. Of course, and our associate who makes a huge difference here, because of their services and everything, we have been voted as world's best hotel. And we would like to continue our services and excellence to any guest who visit us. And it's like a true royalty working here with such an iconic property. Thank you. Thank you. बहुत खूबसूरत है
जैसे कि हम राजस्थान की वीडियोस देखते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं राजस्थान जो है ना वहाँ पे इंडिया के ऐसे ऐसे जेम्स हैं कि आप जो है जितना उसे एक्सप्लोर करें ना आपको हर टाइम कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर मिलती है। इससे पहले जो है हम जयपुर तक महदूद थे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम जो है हम जोधपुर में जो है एक हमने भवन देखा है। वैसे जब स्टार्ट हुआ था ना तो मुझे शायद एकदम लगा था कि राष्ट्रपति भवन है इंडिया का, तो बोला था ना मुझे भी यही लगा, लेकिन मैंने कहा ईमेल में लिखा था होटल है और यहाँ पर कुछ और बोला जा रहा है। बट जब सीरियसली, मैं नहीं बोलूंगी सीरियसली, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ सीरियसली, बट जब ये होटल देखा मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ। इतना खूबसूरत और स्पेशली मौसम जहाँ पर लास्ट में वो बैठ कर कॉन्वर्सेशन कर रही होती है, वो वाला व्यू तो इतना खूबसूरत लग रहा था कि मतलब वहां पर बैठा उस टाइम पर पीछे नीला आसमान और जो लाइटिंग रात के टाइम में वहां पर की गई और वो बिल्डिंग को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। लेकिन ये है कि वो समा और वो व्यू मैं नहीं भूल सकती। बहुत मैं अगर वैसे इस बिल्डिंग की बात करूँ ना तो बिल्डिंग जो है मुझे बिल्कुल दूर से जो है ऐसे लुक दे रही थी, जो उसका डोम है वो ऐसा लुक दे रहा था जैसे वाकई इंडिया का राष्ट्रपति भवन है। लेकिन नो डाउट बहुत खूबसूरत है अंदर से, और सबसे अच्छी चीज वहाँ पे महाराजा महारानी अभी भी रहते हैं, जो सबसे मजे की चीज है। मतलब वो किस तरीके से, मतलब देखो जो महारानी का बेडरूम है वो बिल्कुल एक लड़कियों वाला टच और उसको डिजाइन किया गया, और महाराजा का जो बेडरूम है उसको उसमें वही वॉरियर वाली चीजें, पेंटिंग्स और इस तरह की चीजों के साथ डेकोरेट किया गया। लेकिन जिस तरीके से मौसम स्टार्टिंग में वो वहां पर गई भी कार्ड के थ्रू, रथ पे बैठ के, तो मेरे ख्याल में वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से आपको रॉयल सी फीलिंग्स आती है, और एंट्री भी कितनी ज्यादा रॉयल थी, बहुत ज्यादा बाकी। अच्छा वही ना, यहाँ पे फिर एक चीज आती है कल्चर, जो उसका अभी भी कल्चर है ना जो उस भवन का, वो अभी तक मेंटेन उन्होंने रखा हुआ है कि कोई अगर इस तरह आता है तो उसे किस तरह प्रोटोकॉल दिया जाना है। लेकिन मुझे ये अच्छी चीज लगी कि किस तरीके से उन्होंने उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। इसमें 64 रूम्स है। वैसे मुझे ऐसा लगा जैसे राधा जी ने बोला कि 65 रूम्स हैं, बट नीचे लिखा हुआ था कि 64 रूम्स हैं, और 64 रूम्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया होटल में। तो मेरा ख्याल में ये बहुत एक अच्छी चीज है, क्योंकि अब टाइम के साथ आपको आगे मूव करना चाहिए। अभी तो डेफिनेटली उस तरीके की का टाइम नहीं है कि जब राजा महाराजों की एक गवर्नमेंट होती थी, अभी तो मतलब दूसरी टाइप की गवर्नमेंट चलना शुरू हो गई है। तो ये मुझे लगता है कि उनका एक बहुत अच्छा आइडिया कि उन्होंने उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वहां पर आकर रहती हैं, और फिर 2016 में उसको बेस्ट होटल का मतलब वर्ल्ड बेस्ट होटल जो है उसके लिए वोट किया गया। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना तो मुझे जो है ना इसके प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जो है वो देखकर एक मूवी की याद आ गई जिसका नाम था शिकारा। उस मूवी की भी स्टोरी कुछ जो है वो इस तरह की है कि जो उनकी बीवी होती है उन्हें ताजमहल देखने का बहुत ज्यादा शौक होता है, और जो है प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में जो है उनके जो हस्बैंड होते हैं उन्हें स्टे करवाते हैं। तो काफी अच्छी मूवी, बहुत ज्यादा इमोशनल है, एंड में तो बंदा रो ही पड़ता है। वैसे मुझे तो ये देखकर सारा कुछ ना बनी की याद आ गई, उस मूवी की याद आ गई, क्योंकि उस मूवी में भी काफी ज्यादा इस तरह से, आई थिंक वो भी राजस्थान की किसी हवेली में शायद वो बनी हुई मूवी, मतलब इस तरह का, लेकिन एक थोड़ा डिफरेंट है इससे, वो भी बहुत खूबसूरत है। बट नो डाउट राजस्थान के बारे में भी जब आप सोचते हो ना, सबसे पहले आपके जहन में ऐसी ही चीजें आती है, क्योंकि बॉलीवुड के थ्रू हम लोग नहीं, आर्किटेक्चर नहीं, हवेलियां बड़ी बड़ी आपके जहन में आती है जो हम लोगों ने बॉलीवुड के थ्रू देखी हुई है। तो ओवरऑल बहुत खूबसूरत वीडियो थी, और ऑनेस्टली आई वाज स्पीचलेस ड्यूरिंग वॉचिंग वीडियो, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। अभी इसको रीडिजाइन किया गया, और अगर सोचो ये अपनी असली हालत में होती जो पहले का टाइम था, तो उस टाइम पर कितना खूबसूरत। और अच्छा मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी, जो बीच में जो एंकर है लीजा, उन्होंने बोला कि चांद जो है बिल्कुल पीछे से आता है इस हवेली के, हाँ बिल्कुल, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। तो नो डाउट ऐसी जो जगहें होती हैं ना उनपे आपको व्यू बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, और जैसे क्या नाम है उन्होंने छत से भी दिखाया पूरा शहर जो है नजर आ रहा है, मेहरानगढ़ फोर्ट आपको नजर आ रहा है, आपको पूरा शहर का व्यू मिल रहा है। तो ये भी एक जो है ना आपको बहुत सुकून तसल्ली ऐसी चीजें देती हैं। महारानी जी के टेरेस से जो नजर आ रहा था व्यू, वो भी कितना खूबसूरत था, यानी कि आपका दिल नहीं लग रहा तो आप वहां पर बैठ जाओ और झूले में बैठकर आप साथ साथ बाहर की दुनिया को, सुकून को देखो और साथ में खुद भी इंजॉय करो। बट ये है कि हाँ मुझे लगता है कि हम लोग
बहुत भाई बहुत महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे, अगले जन्म में देख लेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ मैं हमारी वीडियोस लाइक हमारे चैनल सब्सक्राइब वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेजेंस। गुड बाय।